हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू? अभी 5th क्लास. I know very well. You all are fit and fine, and you have lots of enjoy. Yes or no? Yes. So, welcome back to the video class at Little Angel School at home. And this is Poonam Bhati from Little Angel School. As you know that I am your computer teacher. Okay, student? So, student, let's learn. Today we are going to cover the day 6 of the revision of chapter number 1. आज हम chapter number 1 की day 6 revision cover करेंगे. ठीक है? In the previous video we already covered the day 5. Okay, in which we are revised some topic of your chapter number 1. So, okay, so let's start with the revision of chapter number 1. So, as you know that this is your chapter number 1, that is the uses of computer, in which we already revised some features of computer. What is computer? Features of computer, computer hardware and computer software. And we already revised some topics of uses of computers. Okay, which is the last topic of your this chapter. Now we will. So students, this is the today topic, that is the office where computer has widely used. Okay, so let's see how computer has widely used in office. Okay, now in office you can communicate with the other person, other employee with the help of computer, because they communicate with the email. Okay, you can prepare the employee details. Okay, suppose for example students, if you have a company or office. Okay, so in your office there are number of employees are there. Okay, like 5 to 6 employees are working in your offices. Okay, so how to maintain your employees detail? How you maintain your employee detail? By using of computer, it is easily to maintain your employee records. You can store your employee addresses, your phone numbers, and your employees phone numbers, employees designations, that means कौन किस पोजीशन पर वहाँ वर्क कर रहा है. ठीक है, तो दिस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू स्टोर्ड in the computer in your offices. So let's talk about the various tasks. You can make and keep records of office documents. If you have office, okay, so you need to maintain or you need to records of your office documents. So with the help of computer you can make and keep records of ऑफिस डॉक्यूमेंट. आप अपने ऑफिस, अगर आपके एक ऑफिस ओपन किया है तो उस ऑफिस में जितने भी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आप इजीली मेंटेन करके रख सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर. अगर आपने फाइल के अंदर रखा, सपोज एक फ़ाइल ले ली और उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स स्टोर करते गए और आपने उसे मेंटेन करके रखा, तो जब आपको किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको सर्च करनी पड़ेगी फ़ाइल. ठीक है, कौन सी फ़ाइल में मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट किस प्लेस पे रखा था. लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में रखा है तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, so you can make and keep records of office documents. Second task, that is you maintain employees personal detail. ओके, ये मैं आपको भी बता रही थी, जब अगर आपने कंपनी ओपन की है या फिर कोई ऑफिस ओपन किया है तो उसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनकी पर्सनल डिटेल भी आप मेंटेन करके रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं उनके पर्सनल डिटेल, लाइक उनकी एम्प्लॉय कौन सी डेजिग्नेशन पर है, एम्प्लॉय का एड्रेसेस क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके घर में नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितनी हैं, ये सारी डिटेल्स जो एम्प्लॉय की जो पर्सनल डिटेल्स हो सकती हैं आप उसको कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं.
एंड ऑल्सो मेंटेन द सैलरी रिकॉर्ड्स, आप सैलरी रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ की, कि किस एम्प्लॉय की क्या सैलरी है, कब उसको दी थी, कितना उसमें से कट हुआ था, कितने नंबर ऑफ डेज वो प्रेजेंट रहा। तो ये सारे डिटेल आप अपने कंप्यूटर के अंदर मेंटेन करके रख सकते हैं। सो यू कैन मेंटेन एम्प्लॉय एंड पर्सनल डिटेल एंड सैलरी रिकॉर्ड्स। You can communicate with each other in your office using emails, ठीक है। आप emails के द्वारा आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और ईमेल्स कहाँ ओपन होती हैं? कंप्यूटर के, ऑब्वियसली कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। तो आप ईमेल्स के थ्रू अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक, with the help of computer. Get it? You can type and print office document. आप अपने ऑफिस की जितने भी सपोज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी आप स्टोर कर रहे हैं उनको आप टाइप करेंगे सबसे पहले, ठीक है। एंड उनको उनकी प्रिंट आउट कॉपी भी, उनकी हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं और उनकी सॉफ्ट कॉपी आपके कंप्यूटर के अंदर हो सकती है। तो यू कैन टाइप एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। यू कैन प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन ऑल्सो, क्योंकि देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक ये तो स्कूल की बात है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। अब अगर हम ऑफिस की बात करें, ऑफिस में क्या होता है कि सपोज हमें कोई ऑर्डर पास कराना है या ऑर्डर लेना है या टेंडर पास कराना है, उसके लिए हमें अपनी कंपनी का एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और वो हम सामने वाली थर्ड पार्टी को शो करेंगे, ठीक है, सेकंड पार्टी को। तो वो प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेगा कि यस इसकी कंपनी में या इसके ऑफिस में ये चीज़ें बेनिफिट हैं, हमें इनके साथ डील करना चाहिए या नहीं, वो प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आइडिया लगाता है, फर्स्ट आइडिया। तो यू कैन प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन ऑल्सो, ठीक है, इन ऑफिसेस। नेक्स्ट प्लेस दैट इज़ द लाइब्रेरीज, ठीक है। हैव यू सीन दिस पिक्चर? In this picture one lady one lady scan the barcode of the book which is back side of your book for detailed books, for find out the detail of books, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं वेरियस पर्पज़ के लिए लाइब्रेरी में, ठीक है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर वेरियस पर्पज़, ठीक है। आप कंप्यूटर के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ़ बुक्स हैं लाइब्रेरीज़ के अंदर उनको वो स्टोर करके रख सकते हैं, जो आपने लाइब्रेरी के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, तो कि कौन सी बुक किस रैक में रखी है, ठीक है। आप रैक नंबर लिखकर नंबर ऑफ़ बुक लिख सकते हैं और बुक टाइटल लिख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो आपको कंप्यूटर से ईज़िली फाइंड आउट हो जाएगा कि मेरी ये लाइब्रेरी में ये बुक इस रैक में रखी हुई है और इतने नंबर ऑफ़ बुक्स मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब अभी अवेलेबल है लाइब्रेरी के अंदर। क्लियर? तो लेट्स सी अबाउट द कंप्यूटर यूज्ड इन लाइब्रेरी। सो स्टूडेंट्स, these are some various purposes. Let's talk about the first purpose. You can access the library's computerized books database, that means the collection of data which is well organized, okay। so इधर अगर हम database की बात करें तो the collection of books is called the database of library. You can easily access the library database, ठीक है, with the help of computer, because in computer the some database are computerized, okay। check records of books issue and return. You can check the records of book issue and return, that means you can check who issued the book and you can also check who returned the book or which book, okay। तो सारी जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे कि कौन सी बुक किसने कब इशू कराई, कौन सी बुक किसने कब रिटर्न की, सारी की सारा रिकॉर्ड हम कंप्यूटर के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक्सेस ऑनलाइन रिसर्च आर्टिकल एंड जर्नल्स। आप लाइब्रेरी की जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं आप कंप्यूटर में अगर स्टोर करके रखते हैं, एक कंप्यूटर लाइब्रेरी बनाते हैं, कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी बनाते हैं, तो आप उसमें रिसर्च आर्टिकल्स भी ले सकते, सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उनके जर्नल्स भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे वीडियो, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा कराती हूँ तो आपके माइंड से स्किप हो जाएगा, ठीक है।
So student, now the next like science and technology, shops and malls and other places we will discuss in the next video. Okay, now it's time to homework. You have to learn about this libraries place and the office place where the computer has widely used. Okay, so student, now have a nice day, take care, खूब सारा पढ़ो, खूब सारा एंजॉय करो. ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय. आप सब लोगों को अच्छे से पढ़ना है, होमवर्क भी कवर करना है. ठीक है स्टूडेंट, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम. ठीक, चलिए, ओके, बाय बाय.